Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. मेरा नाम है अर्पिता and namaste to my lovely audience. If you like books or if you like learning about finance or if you want to know more about physiotherapy in Australia, then do subscribe to my channel It's My Vibe by Arpita where I make videos about these topics. Alright, so आज का जो मेरा रिव्यू है वो है इस बुक पर The 4 Hours Work Week. So the 4 Hour Work Week इसका जो सबटाइटल है Escape the 9 to 5, Live Anywhere and Join the New Rich, and the author's name is Timothy Ferriss. ओके सो ये किताब के बारे में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिव्यूज़ पढ़े हैं. कुछ लोगों को ये किताब अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं लगती. पर्सनली मुझे इस किताब में से कुछ चीज़ें सीखने को मिली जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकती हूँ. सो आई वुड से कि इसमें से जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल. ओके ऑलराइट. इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है अबाउट न्यू रिच. इसमें एक फ्रेमवर्क डिस्क्राइब किया गया है जिसमें जो पहली चीज़ जिसके बारे में बात की गई है वो है अबाउट एब्सोल्यूट इनकम एंड रिलेटिव इनकम. Okay, so I'll try to explain this in a simple way by giving an example. Now, let's say there's a person, Mr. A, and there's another person. I hope you can see this. Mr. B. Okay, so there are two people. Now, Mr. A is, let's say, earning 100k and per year. Okay, so Mr. A की सैलरी है 100k per year और Mr. B की सैलरी है 40k annual. Okay, so annually Mr. A earn करे 100k और Mr. B earn करे 40k. Now, Mr. A वर्क करते हैं, मतलब वो पर वीक कितना काम कर रहे हैं इज 40 आवर्स पर वीक. ऐसे तो अगर आप देखेंगे कौन रिच है, मिस्टर ए या मिस्टर बी, इन टर्म्स ऑफ अगर सैलरी आप कंपेयर करेंगे तो मिस्टर ए डेफिनेटली रिच है देन मिस्टर बी बिकॉज उनकी सैलरी ज़्यादा है. नाउ मिस्टर ए काम करते हैं 40 आवर्स पर वीक बट मिस्टर बी लेट्स से कि यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं ओनली 4 आवर्स per week. He is working 4 hours per week. So in terms of absolute income, yes, Mr. A is richer than Mr. B because उनकी income ज़्यादा है. But in terms of relative income trumps absolute income. Alright, what does that mean? कि relative income trumps absolute income. So absolute income में Mr. A is richer than Mr. B because he is earning more than Mr. B. But in terms of relative income, Mr. B is richer than Mr. A. Why? Because he is working only 4 hours per week, whereas Mr. A is working 40 hours per week. So इनका input Mr. B का बहुत कम है और उसके comparison में उनका output बहुत ज़्यादा है. That means उनकी relative income is who is richer? Mr. B is richer than Mr. A. So relative income trumps absolute income. That is the number one takeaway from this book, which I loved. कि आपका time भी तो बहुत ज़्यादा important है. Your time is also valuable. Okay. So also another thing is so in terms of how much input you have, if your output is more, then definitely that means Mr. B is richer than Mr. A. The other thing is, in this example, let's say Mr. A जो है वो he's working in his location is tied let's say in Australia और वो एक ही country में उनकी location tied है जहाँ पे वो उनको अपने country change वो नहीं कर सकते, whereas Mr. B can work from anywhere in the world. Okay, so Mr. B, although let's say he's making YouTube videos and he can work from anywhere in the world, so in that sense also Mr. B is richer than Mr. A because Mr. B is not tied to the location. The third thing is, let's say Mr. A who is making 100k an year, तो वो we talked about location, yes. Remote working is not an option for Mr. A, whereas for Mr. B he can work from anywhere in the world, is not tied to a location. That means Mr. B is richer than Mr. A. So that is the whole this is the foundation of this book, which is that your absolute income doesn't really matter, but yes, your relative income trumps your absolute
income. All right. The second, there's a framework they spoke about in this book. So it's called DEAL. All right. So D stands for definition. Okay. So न्यू रिच की जो बात करी है कि मैंने आपको बता दिया जो रिलेटिव इनकम और एब्सोल्यूट इनकम का कॉन्सेप्ट, उसके अलावा कि आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा आपका व्हाट इज द गेम, लाइक यू नीड टू रीडिफाइन द गेम व्हाट यू रियली वांट. सो इस किताब में जो न्यू रिच की बात की गई है, अब ये बहुत सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इफ़ यू आर टाइड टू योर लोकेशन जिसमें आपको पेशेंट्स, जैसे मुझे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, तो मुझे पेशेंट्स देखने ही देखने हैं, तो इन दैट केस जो रिमोट वर्किंग का ऑप्शन है वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाता है, इट डजंट अप्लाई. बट देन यू कैन थिंक अबाउट अ बिजनेस जो कि ऑपरेट कर सकते हैं फ्रॉम योर ओन होम. ओके, so for some people this is applicable, the remote working. For some people this is not, but that's the whole idea of this book, that you can think about the ways जिससे आप remote working कर पाए. Okay, so also you can redefine the game by कि you know ideal way क्या होती है कि आप 9 to 5 काम करिए, इतना आप टाइम दे रहे हैं 40 hours per week, you know some people even work like 80 hours per week, आपका पूरा टाइम आपके वर्क में जा रहा है, एंड देन आप थ्रू आउट ये करते हैं 20-30 साल तक और 65 की एज में रिटायर होते हैं, एंड देन आप रिटायरमेंट लेके रिलैक्स कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द गेम दैट वी वांट टू प्ले. Timothy Ferris says that you can redefine your game, and that's the D he's talking about. What is your new rich? क्या आप एक लोकेशन से टाइड रहना चाहते हैं? क्या आप 9 to 5 अगले 10, 20, 30 साल तक करना चाहते हैं? Do you want to retire at the age of 65? Or you want to be this new rich who is not tied to one location, who is working less and earning more, and who is living this new rich life? So that's the number one, D, definition. Then E stands for elimination. ओके, सो ई स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन, एंड इसमें एलिमिनेशन पे उन्होंने बात की है 2 लॉज की. ठीक है, सो पहला है परेटोज लॉ. परेटोज लॉ जिसे 80-20 प्रिंसिपल भी कहा जाता है, इस पे एक और सेपरेट वीडियो बन सकता है, बट इसमें मैं एक ब्रीफ आइडिया शेयर करूंगी कि, और एक बहुत ब्यूटीफुल कोट इस बुक में दी गई है, डूइंग समथिंग अनइम्पॉर्टेंट वेल डज नॉट मेक इट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लेस इज नॉट लेजी. ओके, सो दैट मीन्स डूइंग समथिंग जो इम्पॉर्टेंट नहीं है. यू नो बहुत सारे लोग जॉब्स में जाते हैं और वो वर्क क्रिएट करते हैं खुद के लिए, और जस्ट बिकॉज वो कुछ अनइम्पॉर्टेंट है और उसको स्ट्रेच कर करके करना डज नॉट मेक इट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो देन कम्स हम ई जो इस डील फ्रेमवर्क की बात करें, इसमें जो एलिमिनेशन है वो होता है 2 लॉज के थ्रू डिफाइन, Pareto's law and Parkinson law. Now Pareto's law मैं आपको रीड करती हूँ कि उसका क्या मतलब होता है कि 80% of the outputs results from the 20% of the inputs. That is briefly what Pareto law is. So इस बुक में जो 2 important law जिससे हम definitely कुछ सीख सकते हैं, आप ध्यान से सुनिए, कि 80% of the outputs result from the 20% of the input. So आपको क्वेश्चन करना है, which 20% of sources are causing 80% of my problem and unhappiness? So आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ 20% होगा जो आपकी पूरी अनहैप्पीनेस का या प्रॉब्लम्स की वजह है. So आप वो 20% को एलिमिनेट कर दीजिए. ठीक है, और आप खुद को क्वेश्चन कर सकते हैं कि which 20% of sources are resulting in 80% of my desired outcome and happiness. ऐसा क्या आप जिंदगी में कर रहे हैं जिससे आपकी जो 80% आपके जीवन में जो खुशी आ रही है वो 20% एक्शंस लेने की वजह से है. ओके, दैट्स द 80-20 प्रिंसिपल, कि वो जो 20% चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है जो आपकी 80% खुशियों का या सक्सेस का रीजन है, और उसी पे आपको फोकस करना. आपका जो पूरा फोकस है वो 20% चीज़ों पे आपको करना है. सो इसमें एग्जाम्पल ये है कि जैसे अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, और उसमें इस बुक में भी मेंशन्ड है कि उसमें ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपका पूरा जो आपका बिजनेस है, जो 80% बिजनेस जो है वो
जो 80% आपका रेवेन्यू हो रहा है वो 20% कस्टमर से आ रहा है. सो इंस्टेड ऑफ जो 80% लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 20% लोग हैं वो जनरेट कर रहे हैं आपका मैक्सिमम इनकम. सो क्यों ना आप वो 20% लोगों पे फोकस करिए, जो इतना आपका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करे, जिससे आपका सक्सेस फास्ट हो जाएगा. तो आपकी लाइफ में भी आपको खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में 80% प्रॉब्लम्स और अनहैप्पीनेस का रीज़न है, तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए बिल्कुल. और कौन सी 20% चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस दे सकती है, जो आपकी गोल्स हैं या आपकी जो ड्रीम्स है वो पूरी कर रही है, या बहुत जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है वो 20% चीज़ों की वजह से आ रही है, और उन 20% चीज़ों पे आपको फोकस करना है, बहुत अच्छे से उसको आगे लेके जाना है. एंड दैट इज़ वॉट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स, Pareto's law. That is what it is in a nutshell. The second law the author talks about in this elimination thing is Parkinson law. Okay, so Parkinson law, जो वर्ड्स उसके हैं वो है dictates that a task will spoil in perceived importance and complexity in relation to the time allotted for its completion. So उसका मतलब ये है कि पार्किंसन लॉ क्या है, shorter work time to limit task to the important. So usually क्या होता है कि जो अगर मान लो आपको कोई काम करना है, ठीक है, इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ पार्किंसन लॉ, जो कि आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स से कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, और वो आपने एक कोई प्रोजेक्ट आपको आपकी वर्क से मिला है. अभी आपको मिली है 4 हफ्ते की उसकी टाइम लाइन. सो आपको उसका वर्क टाइम जो है वो मिला है 4 हफ्ते का, लेकिन वो टाइम लाइन आप क्या करेंगे 3 हफ्ते तक. इनफैक्ट जो चौथा हफ्ता भी है ना, वो पहले के 3-4 दिन आप वेस्ट करते हैं और आखिरी के 1-2 दिन में आप वो काम करते हैं. सो दैट इज द पार्किंसन लॉ कि आपको अपनी जो डेडलाइन है कोई भी चीज की, जो टाइम लाइन है, उसको यू नीड टू शॉर्टन द टाइम लाइन, उसको कम करना है. सो अगर आपको कोई काम दिया गया है, भले ही 4 हफ्ते में आपको वो सबमिट करना है प्रोजेक्ट, लेकिन वो काम आप पहले ही हफ्ते में लेकर के बैठ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ आप दिमाग में ये ना सोचे कि जब आएगा तब मैं करूँगा. उसमें क्या होता है कि वही बात होगी कि एग्जाम्स है और आखिरी के 1 महीने में आप पढ़ाई कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आउटकम आपका अच्छा नहीं होगा, राइट. वो आपको जो आउटकम आएगा वो डेफिनेटली अच्छा नहीं आएगा. लेकिन अगर आपको भले टाइम है, लेकिन आप उसकी डेडलाइन जो टाइम लाइन है वो कम कर दे और आप पहले ही हफ्ते में वो काम फिनिश कर लेंगे, तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, आपको आउटकम अच्छा मिलेगा, और यूजुअली आप टाइम के पहले उसको फिनिश कर लेंगे विद बेटर क्वालिटी. ओके, सो दैट इज द पार्किंसन लॉ कि आपकी टाइमलाइन और डेडलाइन, पोस्टपोन चीज़ों को प्रोकास्टिनेट मत करिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा है. अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए तो हमेशा आपने अपनी डेडलाइन कम करनी है और तुरंत आपने वो काम को फिनिश करना चाहिए इन द बिगिनिंग, उसको आप शॉर्ट रखिए. सो दैट इज द पार्किंसन लॉ विच आई लर्न फ्रॉम दिस बुक. सो परेटोज लॉ भी बहुत पावरफुल है और पार्किंसन लॉ भी काफ़ी पावरफुल है. सो वो दोनों चीज़ों को आप टुगेदर अगर आप अप्लाई करेंगे, सो परेटोज लॉ का मतलब क्या है, लिमिट टास्क टू द इम्पॉर्टेंट टू शॉर्टन वर्क टाइम, 18-20 प्रिंसिपल. एंड पार्किंसन लॉ कहते हैं शॉर्टन वर्क टाइम टू लिमिट टास्क टू द इम्पॉर्टेंट. एंड आपको द बेस्ट सोल्यूशन इज टू यूज बोथ टुगेदर. ये दोनों लॉज को आपको अपनी जिंदगी में एक साथ यूज करना है. आइडेंटिफाई द फ्यू क्रिटिकल टास्क दैट कॉन्ट्रीब्यूट most to income and schedule them with very short and clear deadlines. तो इसका मतलब क्या है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं, आपको ऐसे कुछ काम को आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको फिगर आउट करना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे आगे बहुत सक्सेसफुल बना सकती है या आपकी ड्रीम्स पूरे कर सकती है. सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको बहुत उसमें शॉर्ट और क्लियर उसकी डेडलाइंस आपको रखनी है कि आपको उसको पोस्टपोन नहीं करते रहना है. उसकी क्लियर डेडलाइंस आपको रखनी है और उस पर आपको काम करना शुरू कर देना है. ओके, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट टेक अवे दैट आई टुक फ्रॉम दिस बुक. सो इस डील फ्रेमवर्क की जो हम बात करें, डी इज डिफाइन योर न्यू रिच, ई इज एलिमिनेशन, जिसमें मैंने परेटोज लॉ और पार्किंसन लॉ आपको बताया. इसके बाद
ए जो है ऑटोमेशन. ऑटोमेशन में जो मुझे समझ आता है वो है आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग एंड आउटसोर्सिंग, विच इज़ अनदर अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि आपकी लाइफ बहुत ईजी बना सकता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में आ सकता है. सो यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की ऑथर एग्जाम्पल देके बात करते हैं कि बहुत सारे टास्क जो रेपिटेटिव टास्क है, अगर आपको आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहीं अच्छी जगह, वैल्यूबल जगह यूज़ करना है, तो आप जो रिपीटेटिव जो आपके टास्क है उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें. एग्जाम्पल है, आप वो चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हैं. जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, आपकी जो रेपिटेटिव टास्क है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप इवन इंडिया से भी वर्चुअल असिस्टेंट आउटसोर्स कर सकते हैं. उसमें आप पैसे भी बचाएंगे, आप डॉलर्स में अर्न करेंगे, रुपी में अगर खर्च करेंगे, वो भी एक कॉन्सेप्ट मेंशन किया है इस बुक में, तो आपके पैसे भी सेव होंगे और आपका टाइम सेव होगा जो कि आप किसी और चीज़ में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स यू आर अर्निंग $20 an hour. सो आप किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं वो सेम जॉब के लिए फॉर $7 an hour, एंड दैट वे यू विल सेव योर मनी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू विल सेव योर टाइम, एंड यू कैन गिव दैट टाइम टू समथिंग वैल्यूएबल that will make a significant difference in your life. Okay, so outsourcing, अभी आप खुद से ये सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं जिससे आपका टाइम रिड्यूस होगा और वो टाइम आप किसी वैल्यूएबल चीज में यूज कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स द third thing, the third concept from the deal framework, which is automation and outsourcing, is a beautiful thing that I've learned from this book. And the last one is liberation. So liberation means why tie yourself down to a single location, right? So when you can work from anywhere in the world. Again, this one इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि अपनी जॉब छोड़ देंगे आप कहीं से भी काम कर पाएंगे, राइट? बट आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ सोच सकते हैं जो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करेगा, इवन व्हेन यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर. आप कहीं पे भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, तो भी ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, ताकि आप लिबरेशन, मतलब यू आर नॉट टाइड टू वन लोकेशन इन ऑर्डर टू अर्न मनी. सो योर मनी इज वर्किंग फॉर यू इवन व्हेन यू आर asleep. That money will make more money, so you need to find similar things, and that is the liberation concept mentioned in this book. And the last thing I'm going to speak about is mini retirement. So the author speaks about mini retirements, कि आप एक traditional way क्यों कर रहे हैं कि सारी जिंदगी आप काम कर रहे हो, end में 65 की age में you take retirement, and that's when you're going to travel the world and retire and do the rest of the things that you dreamt about. Instead, the author says कि आप mini retirements लीजिए जो कि आप थ्रू आउट द लाइफ आप 20 years में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, सो दैट वे आपका टाइम भी आपके साथ आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आप ट्रैवल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वेटिंग for that time to come when you retire, which there's no certainty for anything in this world. So why wait when you can distribute that time and take mini retirements throughout these 20 or 30 years. Okay, so yeah, so that's the deal framework mentioned in this book. 4-hour work week, escape the 9 to 5, live anywhere and join the new rich by Timothy Ferriss. So मुझे तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी. इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं या पैसिव इनकम के बारे में, सो बहुत सारे इसमें आइडियाज़ मेंशन है. सो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ very good book, but everybody has its own take on it, but I chose to take the good things that will help me in my life from this book. Okay, so yeah, that's my review of this book. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई किताब पढूं और उसका रिव्यू शेयर करूं, so comment down below and I will see you in my next video. Till then, goodbye.